which are very important from VTC point of view. So VTC is voltage transfer characteristics. So we have studied the definition of these four voltage terms. Okay, we know what is VOH, VOL, VIL, and VH. We know these things. Then uh, yesterday we were discussing the topic that is noise margin. Okay, so for that, to explain that noise margin, I gave you the example which is shown in figure 5.5. Okay, so there are number of NOT gates, three NOT gates are there which are cascaded, and they are cascaded using interconnect. Okay, so if so what is expected here, whatever is the data, suppose at the gate 1 input there is VOH, then that VOH will be converted into VOL by the inverter action, and then that VOL has to be transferred properly to the second gate input. Okay, but in between what is there, there is an interconnect, so noise may occur, noise may attack this signal, and then what can happen, so that depends on the noise whether it is additive or subtractive, that can which in turn that can result into increase or decrease of the voltage. Okay, at this point at the input of the second gate. So if that gate if that input voltage to the gate, second gate, if it is reduced, okay, below VIL, then that is okay. Okay, VIL is a level, you know that, but VIL के अगर नीचे means if it is reducing below VIL, then it is okay, no issue. But if it is going above VIL, then that means it is going in which region? If that voltage is greater than VIL, that means it is going in which region? Transition. Transition region. And you know that transition region is the unpredictable region. Any inverter gate cannot decide the logic level of the input signal if the voltage lies in between VIL and VIH. Okay, so that is the a problem with the transition region. So you cannot expect that gate will perform properly if you are inputting a signal which lies between VL and VH, because that is the transition region. So it is very much difficult to understand whether the signal which has come over there, that is logic 0 or logic 1. Now because of the addition of noise, if that signal goes beyond VH, okay, VH se bhi aage gaya, then what will happen? Then there is, you can say, wrong interpretation. Wrong interpretation means actually you know that the signal was logic 0, but if it is greater than, because of the additive noise, if that signal goes beyond VIH, then this second gate will assume that it is a logic 1. Okay, it will assume, it will interpret that as logic 1, and accordingly it will give the output. So but you know that this is the error, and this error will propagate further. So this is the problem with if there is a noise, and if that noise is you can say if it is very high noise, then this problem will occur. But if noise is within the margin, then there is no issue. Okay, so margin के अंदर अगर noise है, then there won't be any issue. So we have studied what is the noise margin. Okay, I explained you yesterday from the diagram. This diagram we have studied, that is figure 4.6. This is the diagram where we can explain what is NMH and NML. You have written the definition for NML and NMH. Okay, और कल मैंने तुम लोग को क्वेश्चन पूछा था, you know that what is NMH and what is NML. The question was whether the large noise margin is good or small noise margin is good. Okay, तो सबने कुछ सोचा है इस पे? What is the answer? Yes, ma'am. Large. लार्ज. ओके, इज देयर एनीबॉडी जिसको लग रहा है कि छोटा सा, मतलब इफ एनएमएच हाइट, ये जो एनएमएच का हाइट है, अगर ये स्मॉल होगा देन दैट विल बी गुड. कोई है ऐसा? प्लीज लेट मी नो. किसी को लग रहा है स्मॉल नॉइज मार्जिन विल बी बेटर? किसी को भी नहीं लग रहा है. दैट मीन्स सबको आंसर मिल गया है व्हाई वी नीड हाई नॉइज मार्जिन. ओके, हाई नॉइज मार्जिन मतलब उतना ज़्यादा नॉइज आएगा तो चलेगा, मतलब कुछ इशू नहीं होगा. दैट मीन्स योर सर्किट विल परफॉर्म वेरी वेल. योर यू कैन से the NOT gate, here we are considering the NOT gate, the NOT gate will perform very well. Okay, or you can say without error. अगर if the noise is in the limit मतलब noise margin का ये limit है, ये जो arrow है यहाँ पे, this is the limit. तो ये limit में अगर है then it's okay, no issue. अगर ये लिमिट कम हो गया है, सपोज इफ द लिमिट इज वेरी स्मॉल, अगर छोटा सा लिमिट है, देन इट इज डिफिकल्ट. अरे इतना ही नॉइज मार्जिन है अपने पास, इससे जरा भी आगे गया तो व्हाट विल हैपन, इट विल रिजल्ट इनटू एरर. Okay, so all of you know that noise margin high means it is a good thing for a circuit. Noise margin low है मतलब you can say
द सर्किट इज वेरी सेंसिटिव टू द नॉइज. सेंसिटिव मतलब थोड़ा भी नॉइज आएगा तो सर्किट को नहीं चलेगा, गेट को नहीं चलेगा, इट विल रिजल्ट इन टू एरर और रॉन्ग आउटपुट. Okay, so that is called as sensitivity to the noise. Okay, so please all of you write down this sentence. Write down. Large noise margin is good for a circuit to get the proper output or error free output. Large noise margin is good for the circuit to get the error free output. Okay, now I will ask one question again based on noise margin. Now this noise margin graph which we are studying now, ये generalized graph है. Okay, now this graph is there for analog circuit also and you can say digital circuit. अभी जो हम लोगों ने study किया, ये जो तुम लोग को सामने दिख रहा है, this is for digital circuit. Okay, digital के लिए है. So digital के लिए this is the, you can say this is the noise margin available. Now if I ask you the question that if you have the analog circuit, okay, analog circuit है आपके पास, and if you want to calculate the noise margin, and after that you have to compare. Okay, now if you want to calculate the noise margin, and if you compare the noise margin within those two circuits, that is digital and analog, then which circuit will have more noise margin? Okay, that is the question. तुम लोग के पास दो सर्किट है, एक एनालॉग है, एक डिजिटल है. ओके, दोनों सर्किट में से किसका नॉइज मार्जिन ज्यादा होगा? ओके, सो टेल मी द आंसर. गेस करो. हेलो, हाँ, हेलो, हेलो, हाँ बोलो. किसका नॉइज मार्जिन ज्यादा होगा? जो डिजिटल सर्किट का नॉइज मार्जिन ज्यादा होगा या एनालॉग सर्किट का? सी, नॉइज मार्जिन ज्यादा है इसका मैम मतलब क्या है? डिजिटल का ज्यादा होगा ना, यस, राइट, राइट. एनालॉग का कम होगा. एनालॉग का कम होगा, राइट. परफेक्ट आंसर. मतलब सिंपल है, इतना कुछ नहीं है. सी, तुम लोग को पता है नॉइज मार्जिन ज्यादा मतलब उतना नॉइज उसको चलेगा. तो किस में चलेगा? डिजिटल में ही चलेगा ना. एनालॉग में चलेगा क्या इतना नॉइज? एनालॉग में चलेगा. सी, यू नो दैट एनालॉग में ईच एंड एवरी वोल्टेज इज मतलब यू कैन से सपोज 0 से 0.6 भी हुआ तो भी नहीं चलेगा. ओके, 0 से 0.5 भी नहीं चलेगा. 0 है तो 0 का 0.1 दैट इज एक्सपेक्टेड, मतलब उतना चलेगा. 0 से 0.1 इट्स ओके, बट 0 का 0.5 हो रहा है, इट वोंट डू. ओके, दैट इज द केस ऑफ एनालॉग. मतलब एनालॉग में जो नॉइज मार्जिन होता है वो बहुत कम होता है. ओके, सो ये याद रखो. प्लीज राइट डाउन दिस पॉइंट. Digital circuit will have large noise margin as compared to analog circuit. Again, this can be asked in Viva. Digital circuit will have large noise margin as compared to analog. Okay. So now you have the idea of noise margin. What are the four important voltages which we show on the VTC, that is voltage transfer characteristics of any inverter circuit. ठीक है, तो ये दो चीजें तुम लोग को याद रखनी है. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द CMOS इन्वर्टर. ओके, तुम लोग को मैंने बताया था लास्ट टाइम. एक्चुअली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इन्वर्टर बेस्ड ऑन द लोड अटैच्ड. ओके, लोड कौन सा यूज कर रहे हो उस पर डिपेंडेंट 4 देयर आर सर्किट्स, 4 इन्वर्टर टाइप्स है. उसमें से यू हैव ओनली CMOS इन्वर्टर इन योर सिलेबस. ठीक है, CMOS इन्वर्टर ही तुम लोग को स्टडी करना है. सो विल नॉट गो इनटू डिटेल. ये जो अभी दिख रहा है ना तुम लोग को, ये जो एनालिसिस है, ये जो ग्राफ था, ये किसका ग्राफ है? Resistor. यस, दिस इज द VTC ऑफ रेजिस्टिव लोड इन्वर्टर. ओके, तो हम लोग को ये एनालिसिस नहीं करना है. ओके, तो ये स्टडी नहीं करना है तुम लोग को. ओके, व्हेन आई थिंक आई हैव अपलोडेड दीज नोट्स. तो तुम लोग को याद रखना है कि तुम लोग को क्या नहीं करना है, क्या करना है. सो प्लीज इफ यू कैन नोट डाउन, you have to do only the analysis of CMOS inverter. Okay, you can refer your syllabus. तो उसमें भी तुम लोग को वही दिखेगा कि सिर्फ तुम लोग को डायरेक्टली CMOS इन्वर्टर का एनालिसिस करना है. ओके, so directly what we will do now, we'll start with CMOS inverter circuit. So now this is a CMOS inverter. Okay, so can you see this figure 5.16a?
Yes, ma'am. Okay, so यहाँ पे what can you see? What is there here? You can say this is a driver transistor NMOS, and what is there at the place of load? PMOS. रेजिस्ट यस, रेजिस्टिव इन्वर्टर पे हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे लोड के जगह पे रेजिस्टर था. अभी यहाँ पे लोड के जगह पे पीमोस है, राइट? सो when there is NMOS as well as PMOS in a one circuit, okay? So that particular circuit is called as CMOS. CMOS मतलब complementary MOS, जहाँ पे NMOS and PMOS both are present. So 5.16a is the circuit diagram for CMOS inverter. Now we will study the circuit diagram exactly connections कैसे किया है, that we'll study. Okay, so we'll start with NMOS. ये नीचे का जो NMOS है. Okay, so uh, here the terminal which is grounded. Okay, अभी यहाँ पे तुम लोग को कैसे पता चलेगा which one is source and drain? Upper one is drain or upper one is source for NMOS? Upper one is drain. ड्रेन, यस, ठीक है. ऊपर वाला जो है वो ड्रेन है, ये नीचे वाला जो है वो सोर्स है. तुम लोग को डू यू नो वेयर यू विल कनेक्ट द सोर्स एंड बॉडी टर्मिनल ऑफ NMOS? To ground. टू ग्राउंड. ओके, अगर किसी को ये नहीं पता है प्लीज राइट इट डाउन. ओके, दीज आर बेसिक क्वेश्चंस, ओके, which are asked in VLSI. So बॉडी टर्मिनल, ये बॉडी है, बॉडी एंड सोर्स दे आर कनेक्टेड टू द ग्राउंड. ओके, ये दोनों भी ग्राउंड करना है. नाउ द क्वेश्चन which can be asked is why we are grounding this body terminal. So इसका आंसर just write down, to avoid the body effect. Okay, एक body effect होता है. To avoid the body effect, we are connecting the body terminal of NMOS to the ground and body terminal of PMOS to VDD. Okay, so please mention these 2 points. To avoid body effect, we are connecting body of NMOS to ground and body of PMOS to VDD. अभी तुम लोग पूछोगे कि बॉडी इफेक्ट क्या होता है. सो इन शॉर्ट जस्ट राइट डाउन, if there is write down body effect लिखो. Now again this is not there in your syllabus में नहीं है, बट तुम लोग को पता होना चाहिए, इसलिए मैं तुम लोग को बता के रख रही हूँ. what is body effect? write down if VBS means what? Body to source voltage. Okay, write down if VBS is not equal to 0. Write down if VBS is not equal to 0, it will result into threshold voltage variation. If VBS is not equal to 0, then it will result into threshold voltage variation. Is it clear what is body effect? लिखा है जो तुम लोगों ने अभी, वो समझा क्या लिखा है? Yes, ma'am. किसी को डाउट है, वो नहीं समझा स्टेटमेंट? इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है. क्या है, सी, अगर VBS मतलब बॉडी एंड सोर्स के, बॉडी एंड सोर्स के बीच में कोई वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है, ओके, मीन इफ दैट वोल्टेज इज नॉन जीरो. अब जीरो है तो कुछ इशू नहीं है, बट if there exists a voltage which is non-zero, then that can change the threshold voltage of that particular MOSFET. This is called as a body effect. तो अभी तुम लोग को चाहिए क्या कि तुम लोग का सर्किट अभी काम कर रहा है, उसी टाइम पे बीच में कभी भी उसका सपोज थ्रेशोल्ड वोल्टेज चेंज हो गया, इज इट ओके विद यू? चलेगा क्या? No, ma'am. नहीं. Okay, so obviously you don't want that threshold voltage of MOSFET should change. Threshold voltage should remain constant. It is expected. So इसलिए हम लोग को फिर क्या करना चाहिए, अपने को always we have to make a connection in such a way that VBS will be 0 for both the MOS, NMOS को या PMOS दोनों के लिए VBS 0 होना चाहिए. तो अभी सोर्स में क्या, सॉरी, NMOS में क्या करते हैं, दोनों को भी ग्राउंड करते हैं, एंड PMOS में दोनों को भी VDD कनेक्ट करते हैं. Now, if you see the circuit arrangement, can you calculate what is VBS value for both the MOS? What is the VBS value? कितना है? VDD minus VGS. What is VBS value? VBS means body to source voltage. Body to source हम लोग कैसे लिखेंगे? Body VBS is equal to, write down, VBS is equal to VB minus VS. Is it okay? ये फॉर्मूला समझा? ये तो इजी है.
VBS is equal to VB minus VS. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, हाँ. ma'am. अभी अभी ये सर्किट डायग्राम देखो ठीक से. सब पहले एनमॉस लो. ओके, एनमॉस को लो. यहाँ पे VB मतलब बॉडी कहाँ पे कनेक्टेड है? चेक. कहाँ पे कनेक्टेड है Ground. बॉडी? जीरो, Ground. मतलब ग्राउंड. ओके, तो वहाँ पे लिखो VB इज जीरो. राइट डाउन VB इज जीरो माइनस VS मतलब सोर्स वोल्टेज. सोर्स कहाँ पे कनेक्टेड है? Ground. ग्राउंड. सो राइट डाउन 0 माइनस 0 ना. VB माइनस VS मतलब 0 माइनस 0. आंसर इज 0. राइट. गेटिंग? Yes, ma'am. इसका मतलब बिकॉज ऑफ सच एन अरेंजमेंट VBS हैज गॉट जीरो वैल्यू. ओके, मतलब VBS अभी जीरो है. तो अगर VBS जीरो है मीन्स देयर वोंट बी बॉडी इफेक्ट इनटू पिक्चर. ओके, बॉडी इफेक्ट अभी पिक्चर में नहीं आएगा क्योंकि VBS जीरो है. सेम थिंग विल अकर फॉर PMOS. चेक. दोनों भी टर्मिनल दैट इज सोर्स इज कनेक्टेड टू VDD. सिमिलरली बॉडी इज आल्सो कनेक्टेड टू VDD. मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम पोटेंशियल. दे आर ऑन द सेम पोटेंशियल. So if they are on the same potential, then what will be the potential difference? 0. Zero. Write down this thing. And if you are getting zero voltage, that means body effect will not come into picture. Is it clear this point? All of you? Yes, ma'am. ओके, ठीक है. अभी तो तुम लोग को ये समझा अपना ड्रेन और सॉरी सोर्स एंड बॉडी, इसके कनेक्शंस क्लियर है. नेक्स्ट, गेट. दोनों का गेट. ओके, PMOS एंड NMOS का गेट हम लोग क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे. मीन्स दे वी विल कनेक्ट PMOS का गेट टू द NMOS का गेट एंड दोनों में से कॉमन टर्मिनल निकालेंगे. वहाँ पे हम लोग वी विल अप्लाई इनपुट वोल्टेज. ओके, देयर वी विल अप्लाई इनपुट वोल्टेज. दैट मीन इसका मीनिंग क्या है? वी आर अप्लाइंग इनपुट वोल्टेज साइमल्टेनियसली टू PMOS एज वेल एज NMOS. ओके, नेक्स्ट, दोनों का ड्रेन हम लोग शॉर्ट करेंगे. PMOS एंड NMOS दोनों का ड्रेन शॉर्ट करके वी विल टेक वन टर्मिनल कॉमन. ओके, एंड दैट टर्मिनल एट दैट पॉइंट वी विल टेक आउटपुट वोल्टेज विच इज V out. सो दिस V out इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो ये पॉइंट पे पॉजिटिव रहेगा एंड ग्राउंड पे नेगेटिव रहेगा. सो यहाँ पे तुम लोग आउटपुट मेजर करोगे एंड इनपुट कहाँ पे अप्लाई करोगे? गेट पे. गेट टू ग्राउंड. गेट टू ग्राउंड इनपुट and drain to ground output. Is this circuit clear? सर्किट डायग्राम क्लियर हुआ? Yes, ओके, ma'am. ठीक Yes, है. ma'am. इस ओके. अभी यहाँ पे सर्किट डायग्राम तो तुम सबसे पहले तो तुम लोग को सर्किट डायग्राम समझ में आना चाहिए. तुम लोग को ये अभी ड्रॉ करना है बाद में. एंड नेक्स्ट थिंग इज यू विल जैसे हम लोग EDC में कोई भी एम्पलीफायर का सर्किट ड्रॉ करने के बाद व्हाट वी आर डूइंग दी वी आर अप्लाइंग वोल्टेजेस. ओके, जहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा जैसे VBE बेस टू एमीटर, VG MOSFET में VGS गेट टू सोर्स. तो यहाँ पे भी वही करना है अभी. As soon as you draw the circuit, what you have to do? You have to apply various voltages. You have to show various voltages. So यहाँ पे ये PMOS ऊपर है. तो PMOS में गेट पे पॉजिटिव, ये सोर्स पे नेगेटिव. ओके, सो VGS. सो गेट टू सोर्स VGS एंड सफिक्स P मतलब PMOS का VGS. सिमिलरली NMOS के लिए कैसे लिखोगे? गेट टू सोर्स, ये गेट से लेके सोर्स का जो वोल्टेज है दैट इज VGSN. सो दिस इज VGSN. ऊपर वाला जो है वो VGSP. नेक्स्ट, अभी आउटपुट में आ जाओ. आउटपुट में फ्रॉम दिस आउट टू ग्राउंड इट इज V out विच इज नथिंग बट VDSN, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज ऑफ NMOS. VDSN मतलब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज ऑफ NMOS. सिमिलरली ऊपर वाला दैट इज यहाँ पे प्लस, ऊपर माइनस. सो दैट इज VDSP, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज ऑफ PMOS. सो ये सब इसका वोल्टेजेस आर क्लियर एंड उसका जो ये क्या बोलते हैं साइन कन्वेंशंस, दिस थिंग्स आर क्लियर. हेलो हेलो. Yes, ma'am. ओके, ऑल ऑफ यू प्लीज ड्रॉ दिस सर्किट. CMOS इन्वर्टर का ये वाला सर्किट ड्रॉ करो जल्दी से एंड शो दिस करंट्स. PMOS में से जो करंट फ्लो होगा दैट इज ID ड्रेन करंट. IDP मतलब PMOS का ड्रेन करंट. IDN मतलब NMOS का ड्रेन करंट. शो द ड्रेन करंट.
Completed? No, ma'am. Once completed, let me know. Completed? Yes. Okay. Okay. So now this figure A shows the circuit diagram of CMOS inverter. Okay. Next, see the figure B. Now what is figure B? Figure B is nothing but you can say its equivalent diagram, or you can say its simplified view. Simplified means what? Here we are showing these MOSFETs, that is PMOS and NMOS, as switches, non-ideal switch. So here you can see this PMOS is replaced by switch. Again NMOS is also replaced by switch. Okay, so these are two switches, and these switches का जो on off action है, those actions, okay, on off action जो भी है, this action is controlled by input voltage V in. So that is shown over here. So यहाँ पे actually हो क्या रहा है, NMOS and PMOS दोनों भी as a switch act कर रहे हैं. Okay, here in CMOS inverter circuit, they both of them are acting as a switch. ठीक है, so इसका ये simplified structure है. So now basically how the inverter action is performed, that we'll see. Okay, so यहाँ पे we'll start now. See, first of all, we'll see the VTC. So this is voltage transfer characteristics. Okay, can you see this VTC? दिख रहा है सबको? 5.17 figure. Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पे क्या है, सी यहाँ पे VTC है, मतलब आउटपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट वोल्टेज. सो आउटपुट वोल्टेज का जो मैक्सिमम रहेगा दैट इज ऑब्वियसली इट विल बी VDD. ओके, हम लोग अगर न्यूमेरिकल में चाहिए तो तुम लोग अज्यूम करो VDD इज 5. Next, on x-axis, voltage is from 0 to VDD again. And then on the x-axis, you can see various voltages. First of all, we'll see what are those voltages. So सबसे पहले ये तो 0 है, that is origin. 0 के now we'll go to the right side. Right side पे सबसे पहला जो voltage आता है, that is VTON. What is this VTON or VT not N? Threshold for NMOS. Yes, right. So this is threshold voltage for NMOS. इसका वैल्यू है +1. ओके, इसका वैल्यू है +1. सो VTO नॉट का वैल्यू +1, ये याद रखो तुम लोग. सो दिस इज +1. नेक्स्ट, व्हाट इज VIL? VIL तुम लोग को पता है, VIL एंड VIH. ओके, सो VIL का वैल्यू मैंने क्या अज्यूम करने बोला था फॉर दिस एग्जांपल 0 to 5 के लिए? व्हाट इज VIL वैल्यू? 2 volts. 2 वोल्ट, राइट. हाँ, ये याद रखो. सो VIL इज 2 वोल्ट.
ये मैं क्यों बोल रही हूँ अर्जुम करने के लिए वैल्यूज, क्योंकि व्हेन इफ यू वांट टू कैलकुलेट, अगर मैंने क्वेश्चन पूछा अभी एट पॉइंट ए टेल मी द रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ पीमॉस एंड एनमॉस, तो तभी तुम लोग क्या करोगे, एट पॉइंट ए व्हाट इज द इनपुट वोल्टेज वैल्यू, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज वैल्यू, दैट यू विल टेक एंड देन यू विल चेक द कंडीशन. ओके, जो इक्वेशंस दिए थे मैंने स्टार्टिंग में एकदम, to check whether the MOSFET is in linear or saturation or cutoff. तो वो कंडीशन जो फॉर्मूलाज है वो यूज करके यू हैव टू फाइंड वेदर द पर्टिकुलर मॉस इज इन सैचुरेशन और लीनियर और कट ऑफ. तो इसी के लिए तुम लोग को पता होना चाहिए व्हाट इज दिस VT नॉट वैल्यू, सो इट इज 1. व्हाट इज VIL, इट इज 2. व्हाट इज VIH, व्हाट इज VIH, minimum value for logic 1. हाँ बट उसका ये वैल्यू कितना था, मैंने क्या बताया था VIH का वैल्यू 3. 3 volts. 3 volt. Okay, so VIH is 3. Next, this is now okay. अभी यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट बात, जीरो है. ओके, जीरो के राइट हैंड साइड पे देयर इज अ +1 विच इज VTO नॉट, सॉरी VT नॉट N, मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ NMOS, दैट इज +1. वही लेफ्ट साइड पे चेक करो. ओके, लेफ्ट साइड पे, जीरो के लेफ्ट साइड पे देयर इज VTOP. तो VTOP क्या हो सकता है, व्हाट इज दिस VTOP? Threshold for PMOS. यस, इट इज अ थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर PMOS. और एक चीज हमेशा याद रखो कि VTON एंड VTOP ये दोनों भी ऑपोजिट रहेंगे. ऑपोजिट मतलब VTO नॉट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, और N मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ NMOS विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. सो थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ NMOS विल बी लाइक +1, +0.5, +0.7, like that. Is it okay? Similarly, threshold voltage of PMOS will be exactly negative. ओके, मतलब अभी VTO नॉट N पॉजिटिव है तो VTO नॉट P नेगेटिव रहेगा हमेशा. मतलब इसका वैल्यू क्या रहेगा, -1, इट कैन बी -0.5, इट कैन बी -0.7, लाइक दैट. बट दोनों का भी जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी सेम. मैग्नीट्यूड मतलब अगर नाउ इफ आई एम सेइंग VTO नॉट N इज +1, देन व्हाट विल बी VTO नॉट P? -1. -1. -1. All of you please mention this point. Write down VTO naught N magnitude is equal to VTO naught P magnitude is equal to 1. अभी हम लोग 1 यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं. पूरे जब तक हम लोग को CMOS इन्वर्टर नहीं समझता ये वैल्यूज यही रहेंगे. ओके, मीन्स VTO naught N will be +1 and VTO naught P will be -1. एंड बाकी ये भी वोल्टेजेस जल्दी से लिखो. VIL will be 2, VIH will be 3, VIL 2, VIH 3. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अभी ये वाला पॉइंट यहाँ पे जो है. ओके, सो हियर इट इज VDD plus VTOP. व्हाट इज VDD वैल्यू? अरे मना कर फायदा रहते हैं. हेलो हेलो, व्हाट इज VDD वैल्यू? 5 volts. 5 वोल्ट. ओके, VDD is 5 एंड वहाँ पे क्या लिखा है, दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट इट इज VDD plus VTOP. अभी VDD 5 है, व्हाट इज VTOP वैल्यू? -1. -1. -1, राइट. सो 5 -1 कितना आएगा? 4. ओके, तो यहाँ पे ये जो वोल्टेज है इट इज 4 एक्चुअली. सो यू कैन, अभी तुम लोग थोड़े टाइम के बाद ये डायग्राम ड्रॉ करने वाले हो तो उस टाइम पे यहाँ पे 4 आएगा. ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट. लास्ट इज व्हाट VDD मतलब कितना, 5. सो एक्स एक्सिस, इज इट क्लियर? ऑल दी वोल्टेजेस आर क्लियर? क्या वैल्यू है सबका? Yes, ma'am. ठीक है. वाई एक्सिस पे ज़्यादा टेंशन नहीं है. और तुम लोग को पता है ये जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज VDD मतलब 5. तो उसके अकॉर्डिंग बी पॉइंट पे अभी ये स्केल दिया है ऑलरेडी, अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट. ये बी पॉइंट यहाँ पे है तो बी पॉइंट का यू कैन कैलकुलेट द वाई कोऑर्डिनेट कितना है. ओके, सो इन दिस वे कैन यू टेल मी नाउ सी इज द मिडल पॉइंट, एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट है सी. सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट फॉर सी? क्या होगा? अभी मैंने बोल दिया कि वो सेंटर पॉइंट है तो क्या हो सकता है? व्हाट विल बी सी का कोऑर्डिनेट? 2.5, 2.5. यस, राइट. इट इज 2.5, 2.5. मतलब इनपुट वोल्टेज भी 2.5 है एंड आउटपुट वोल्टेज भी 2.5 है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ थ्रेशोल्ड, सॉरी दिस इज कॉल्ड एज अ स्विच. ये जो इन्वर्टर है उसका थ्रेशोल्ड. ओके, इस इन्वर्टर सर्किट का थ्रेशोल्ड है ये. सो वो तुम लोग को बाद में पता चलेगा. इसको VTH बोलते हैं. इट इज ओनली कॉल्ड एज VTH. and VT naught is threshold voltage of a MOSFET. So there is a difference. VT naught matlab threshold voltage of a MOSFET and VTH here VTH is
थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ इन्वर्टर सर्किट, ये याद रखना। ओके, अभी यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज बीटीसी, सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स में वी आर गोइंग टू स्टडी फाइव पॉइंट्स, सो ए बी सी डी ई। ओके, तो ये जो 5 पॉइंट्स है इनको हम लोग स्टडी करेंगे। एट ईच एंड एवरी पॉइंट वी विल check the region of operation of NMOS and PMOS, and based on that we will uh, equate the current equations, and then we will calculate the different voltages. Different voltages मतलब एक्चुअली अपने को यहाँ पे करना क्या है, जो 4 वोल्टेजेस हम लोगों ने डिफाइन किए हैं ना, VIL, VIH, VOH एंड VOL, उसका वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये चारों वोल्टेजेस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो वो करने के लिए अभी पूरा हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द एनालिसिस वी नीड टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ CMOS इन्वर्टर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक सिंपल तुम लोग को बता रही हूँ, ये पहले व्हाट विल डू, विल जस्ट फर्स्ट डिस्कस दिस सर्किट, मतलब उसका वर्किंग डिस्कस करेंगे। सो नाउ विल स्टार्ट विथ इनपुट वोल्टेज। इनपुट मैंने अगर 0 वोल्ट दिया, ओके, नाउ लिसन केयरफुली, इनपुट इज 0 एंड तुम लोग को पता है ये दोनों भी मॉस दे आर गोइंग टू एक्ट एज अ स्विच, इतना ही याद रखो, स्विच की तरह काम करने वाले। अभी इनपुट 0 दिया, सो व्हाट विल हैपन विथ NMOS। अभी तुम लोग, मैंने बोला स्विच है, मतलब एक तो ऑन या तो ऑफ, यही सोचना है फिलहाल, हाँ, ऑन या ऑफ। तो मैंने बोला इनपुट 0 है, तो कौन सा मॉसफेट ऑन होगा और कौन सा मॉसफेट ऑफ होगा। PMOS will be on and NMOS will be on. NMOS will be off and PMOS will be on. Okay, that is right. See, अगर इनपुट 0 है मतलब 0 वोल्टेज दिया है, मतलब NMOS का थ्रेशोल्ड कितना है, 1 वोल्ट। तो तुम लोग को पता है NMOS का थ्रेशोल्ड अगर 1 वोल्ट है, तो जब तक VGS मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज VGSN, जब तक VGSN का वैल्यू 1 वोल्ट को क्रॉस नहीं करता तब तक ये ऑन नहीं होगा, मतलब ये ऑफ है। दैट मीन्स व्हेन Vin is 0, NMOS is off. Is this point clear, all of you? Yes, ma'am. ओके ओके, हाँ, अभी ये जब ऑफ है तब ये PMOS जो है वो क्या रहेगा, ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन रहेगा। अगेन इसका कंडीशन तुम लोग चेक कर सकते हो, इनपुट इज 0, ओके। ऑल ऑफ यू डू वन थिंग, यू हैव द पेपर पे लिखो, एक साइड पे लिखो VGSP, ओके, VGSP, और दूसरे साइड पे लिखो VTOP, ठीक है। दोनों के बीच में हम लोग कुछ भी साइन नहीं देंगे, वी विल कैलकुलेट दैट। सो राइट डाउन VGSP का वैल्यू लिखो, जल्दी कैलकुलेट करो। व्हाट इज VGSP वैल्यू, व्हाट इज VGSP वैल्यू? 0. श्योर VGSP 0 आएगा? No, ma'am. No, ma'am. हाउ विल यू राइट VGS कैसे लिखेंगे, ये वोल्टेज को कैसे लिखेंगे हम लोग? कैन आई राइट VGS VG minus VS? Yes, ma'am. हाँ, राइट डाउन दैट प्लीज, ऑल ऑफ यू राइट डाउन इन दिस वे। VGSP उसके नीचे लिखो अभी, VGSP इज नथिंग बट VG minus VS। VG minus VS, हम लोग PMOS की बात कर रहे हैं, यहाँ पे PMOS चल रहा है, VG minus VS, और दूसरी साइड पे VTOP है। ओके, नाउ अभी नीचे आ जाओ, नीचे नेक्स्ट स्टेप, VGSP, VGS minus VP लिखा। व्हाट इज VG वैल्यू? VG कितना बोला मैंने? VG मतलब गेट टू ग्राउंड वोल्टेज, ओके। तो PMOS का गेट कहाँ पे है, यहाँ पे, और ग्राउंड कहाँ पे है, यहाँ पे। तो गेट टू ग्राउंड वोल्टेज कितना है? इट इज Vin, राइट? गेट टू ग्राउंड वोल्टेज Yes, Vin ma'am. है ना, हाँ। तो एंड Vin का वैल्यू मैंने क्या बोला अभी, कितना है, 0। सो राइट डाउन VG इज 0, ओके, 0 माइनस व्हाट इज VS? VS मतलब सोर्स वोल्टेज ऑफ PMOS। सोर्स कहाँ पे कनेक्टेड है PMOS का? VDD. VDD। VDD का वैल्यू कितना है न्यूमेरिकल में? 5. 5, राइट डाउन। सो राइट डाउन, सो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, 0 minus 5, इज इट ओके? Yes, ma'am. ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे है 0 minus 5। व्हाट इज देयर ऑन राइट हैंड साइड? इट इज VTOP। व्हाट इज VTOP का वैल्यू? -1. -1 लिखो, ओके। सो राइट हैंड साइड पे -1 है, और यहाँ पे क्या आया, 0 minus 5। सो 0 minus 5 आंसर क्या, -5।
Yes, ma'am. ओके अभी तुम लोग का लेफ्ट हैंड साइड पे -5 है, राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे -1 है. सो ये दोनों में से कौन सा ज्यादा है, विच वन इज ग्रेटर? -1. -1 इज ग्रेटर. तो अभी वो साइन डालो, -1 इज ग्रेटर देन -5. साइन डालो अभी, -1 इज ग्रेटर देन -5. Okay, so that means can I say VTO naught is greater than VGS minus C? Sorry, VTO naught, yeah, yes. Yes, ma'am. VTOP, Yes, ma'am. VTOP, VTOP is greater than VGSP. Okay, लिखा तुम लोगों ने ये? Okay, so मतलब फिर PMOS ऑन है या ऑफ है? On. VTOP is greater than VGSP आया ना तुम लोग को? हाँ, मतलब or you can say in other words, how will you say VGSP is less than VTOP? Yes, Yes, right? ma'am. VGSP is less than VTOP. Okay, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है दैट मींस PMOS इज ऑन. इज इट ओके? चेक करो, तुम लोग को मैंने बेसिक इक्वेशंस दिए थे ना कंडीशन चेक करने के लिए. व्हेन PMOS कब ऑन होता है, NMOS कब ऑन होता है, तुम लोगों ने लिखा था शायद से, चेक करो. Yes, ma'am. Like ओके, तो वो चीज तुम लोग रेफर कर सकते हो. तो यहाँ पे अभी क्या कंक्लूड हुआ कि ये टाइम पे, ये मोमेंट पे यूर PMOS इज ऑन. राइट डाउन. सो PMOS इज ऑन. PMOS इज ऑन. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो. नाउ सी द स्विच सर्किट. तो PMOS नहीं, स्विच वो जाने दो. PMOS ऑन है, तो PMOS ऑन है तो PMOS शॉर्ट सर्किट एक्ट करेगा. NMOS ऑफ है तो NMOS ओपन सर्किट एक्ट करेगा. सो यहाँ पे सपोज आउटपुट में यहाँ पे दिखाया नहीं है, बट देयर यू नो दैट देयर इज अ लोड कैपेसिटर, राइट? लोड कैपेसिटर. तो लोड कैपेसिटर का क्या होगा अभी? NMOS ऑफ है, NMOS इज ऑफ, मतलब यहाँ पे ओपन सर्किट है. सो व्हाट विल हैपन विद द लोड कैपेसिटर? एंड PMOS ऑन है, मतलब इट इज प्रोवाइडिंग अ शॉर्ट सर्किट पाथ टू VDD. So what will happen with CMO अपना कैपेसिटर, लोड कैपेसिटर? it will discharge. डिस्चार्ज होगा या चार्ज होगा? No, ma'am. Charge होगा, charge होगा. चार्ज होगा ना. सी यहाँ पे कैपेसिटर है. ओके, Yes, यहाँ ma'am. पे कैपेसिटर है आउटपुट पे. सो दैट कैपेसिटर अभी क्या होगा, उसको पाथ मिल गया है चार्जिंग के लिए. ओके, सी कैन यू सी, यहाँ पे कुछ नहीं है, NMOS है ही नहीं, इट इज ओपन. तो कैपेसिटर में से जो करंट फ्लो रहा है वो कहाँ से आ रहा है? दैट करंट इज कमिंग फ्रॉम दिस PMOS, क्योंकि PMOS इज ऑन. PMOS ऑन है मतलब PMOS इज शॉर्ट सर्किट. ठीक है, तो इससे क्या होगा, नाउ करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द PMOS and through the capacitor, and so this capacitor will start charging. तो उसका चार्जिंग टाइम कितना है, दैट उस पर डिपेंडेंट है कि वो कितना जल्दी चार्ज होगा. विल अज्यूम कि वो चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट इज वेरी स्मॉल, तो इट विल स्टार्ट क्विकली एंड इट विल चार्ज टू 5 वोल्ट. ओके, सो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, यू कैन से वोल्टेज अक्रॉस लोड इज 5 वोल्ट. ये कब हुआ? व्हेन Vin इज 0. दैट मींस व्हेन Vin इज 0, आउटपुट इज हाई, Vout इज VDD. So that is inverter action. Is this point clear? Yes, ma'am. हेलो, सबको ये समझा मैंने क्या बताया? किसी को डाउट? Yes, ma'am. सबको समझा, ठीक है. ओके, अभी हम लोगों ने क्या देखा, जब इनपुट 0 था तब NMOS ऑफ था, PMOS ऑन था. ठीक है, प्लीज राइट डाउन दिस, जल्दी से लिखो. when Vin is 0, जल्दी से लिखो. when Vin is 0, NMOS is equal to off. अभी हम लोग ज्यादा नहीं सोचेंगे रीजन वगैरह फिलहाल. Just write down off and on. Okay, when Vin is 0, NMOS off, PMOS on. NMOS off, PMOS on. Then write down C out मतलब, और you can say CL, जो लिखना है CL, लोड कैपेसिटर. लोड कैपेसिटर CL start CL charges through PMOS towards VDD. Load capacitor charges through PMOS towards VDD. So Vout is equal to VDD. अभी ये जो तुम लोगों ने लिखा है, दिस इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जो अभी हम लोगों ने मैंने एक्सप्लेन किया उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन. ठीक है,
अभी ये केस लिखा है. कैन यू राइट द नेक्स्ट केस व्हेन V in is 5? कैन यू राइट द नेक्स्ट केस व्हेन V in is 5? 5 volt मतलब लॉजिक 1. व्हेन V in is VDD. Yes, राइट ma'am. डाउन केस 2. जल्दी लिखो, अभी ये तुम लोग खुद से लिखो जल्दी. व्हेन V in is VDD. मतलब अभी तुम लोग लॉजिक हाई अप्लाई कर रहे हो गेट पे, दोनों के गेट पे. सिर्फ दोनों का गेट शॉर्ट है, याद रखो. सो जो भी V in तो तुम लोग अप्लाई करोगे दोनों को भी जा रहा है, दोनों के गेट पे जा रहा है. ओके, सो राइट डाउन व्हेन V in is VDD, व्हाट विल हैपन विद NMOS? अभी NMOS क्या होगा? On. Now it will ऑन. turn on. यस राइट. हाँ ऑन. राइट डाउन जल्दी से लिखो फिर. NMOS इज ऑन नाउ. NMOS इज ऑन. व्हाट अबाउट PMOS? It will be in off state. PMOS विल बी ऑफ. राइट डाउन. अभी तुम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हो PMOS ऑफ, बट यू कैन चेक भी कर सकते हो. कैसे चेक करना है मैंने तुम लोग को इक्वेशन बताया है, राइट? Yes, ma'am. ओके, विच इक्वेशन? VGSP should be greater than VTOP. ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हुआ मतलब PMOS ऑफ है. इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में अगेन प्लीज अभी आफ्टर दिस लेक्चर व्हेन यू विल कम टू द नेक्स्ट लेक्चर, आई थिंक नेक्स्ट वीक भी नहीं, अभी उसके बाद ही होगा ना, कल तो लैब है. ओके, तो उस टाइम पे प्लीज ये बेसिक्स जो इक्वेशंस मैंने बताए हैं वो ठीक से करके आना ना, क्योंकि वो अपने को लगेंगे अभी. ओके, सो राइट डाउन PMOS ऑफ है अभी. ओके, अभी PMOS ऑफ है. सो नाउ व्हाट विल हैपन विद द कैपेसिटर जो इनिशियली चार्ज हुआ है VDD पे, अभी क्या होगा? Discharge. Now it will अभी वो start डिस्चार्ज. discharging ओके, डिस्चार्ज कैसे उसको पाथ किधर है डिस्चार्ज होने के लिए? through NMOS. थ्रू NMOS. राइट डाउन. सी व्हेन यू आर गिविंग द आंसर ना प्रॉपर्ली देना है, ठीक है? नाउ राइट डाउन देयर. नाउ कैपेसिटर discharges through NMOS. कैपेसिटर discharges through NMOS to 0. मतलब Vout is 0. Vout is 0. Hence the CMOS inverter performs the inverting action. Is it clear this point? समझा? कैसे Yes, ma'am. जीरो का, कैसे इनपुट 0 दिया तो आउटपुट 1 मिलता है, कैसे इनपुट 1 दिया तो आउटपुट 0 मिलता है. ये समझा अभी सर्किट कैसे काम कर रहा है. यहाँ पे यूजिंग मॉसफेट हम लोगों ने सर्किट ड्रॉ किया है, सर्किट डिजाइन किया है, एंड देन वी हैव सीन इट्स वर्किंग, राइट? जब तुम लोगों ने डिजिटल में पढ़ा था तो डिजिटल में तुम लोग को इतना ही बताता है गेट होता है. ओके, गेट को नॉट गेट होता है. नॉट गेट को तुम लोग 0 दोगे तो 1 मिलेगा आउटपुट पे, इनपुट 1 दोगे तो 0 मिलेगा. बट एक्चुअली हाउ दैट working, okay, or you can say how that characteristics is obtained using the MOSFET circuit that we have seen now. समझा तुम लोग को ये चीज कैसे किया? Yes, ma'am. ओके, ठीक है. सो अभी आज के लिए इतना ही, ठीक है. सो यहाँ तक मतलब CMOS इन्वर्टर का ऑपरेशन. हाँ, आई एम नॉट सेइंग द इक्वेशंस. ओके, ये जो है ये इक्वेशंस कैसे आया ये तुम लोग को कोई नहीं पूछने वाला है फिलहाल. टर्म टेस्ट 1 में, ओके, विच इज देयर इन नेक्स्ट वीक, द सिलेबस फॉर योर टर्म टेस्ट 1 विल बी टिल दिस पॉइंट, दैट इज 5.16 फिगर तक. CMOS इन्वर्टर का सर्किट डायग्राम एंड उसका एक्सप्लेनेशन. बस इक्वेशंस पे हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं. इज इट ओके? अंडरस्टूड? ओके. यस मैम. ओके, बाकी किसी को कुछ पूछना है? यूनिट टेस्ट का कुछ पूछना है किसी को? मैम ये आपने अपलोड किया है क्लासरूम पे? ये हाँ, क्लासरूम में मैंने VLSI डिजाइन नोट्स चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसा एक PDF डाला है, यू कैन चेक. ओके मैम. ओके, उसी में सब कुछ मिलेगा तुम लोग को. ये जो भी मैं तुम लोग को पढ़ा रही हूँ ये वही PDF है. ओके, इट इज नॉट अदर.